अच्छा जी, आज हम एक नए एंगल से बात करेंगे। आपने इनके साथ तो सारा कुछ पढ़ लिया है ना, तो आपको पता होगा कि अल्लामा क्या कहते हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको यकीनन पता होगा, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी प्रेजेंटेड द जिस्ट ऑफ अल्लामा's थॉट। लेकिन शायद कुछ बातें जो मैं देख रही हूँ उनमें वो शायद इन्होंने ना देखी हों, जो ये देख रहे थे वो ना मैंने ना देखी हों। जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई बंदा है वो खुदा को नहीं मानता तो फिर आप क्या प्रेजेंट करेंगे अल्लामा का। तो उनके अंदर एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, और आज हम उसी यूनिवर्सल ट्रूथ की तलाश में निकलेंगे और देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन बिफोर आई बिगिन द फॉर्मल लेक्चर, आई थिंक यू शुड नो व्हाट इज़ फ़िलॉसफी। तो मेरा ख्याल है द बेस्ट पर्सन टू आंसर माय क्वेश्चन इज़ नाम सलमान है। तो सलमान, व्हाट इज़ फ़िलॉसफी? As far as I've heard, the word philosophy is a Greek word that means the love of knowledge or the love for wisdom. It began pre-Socratic eras, 5th BC, 6th BC. 475 BC. It was born where? Birthplace? Athens, Greek, as we know. Greece. Greece, yes. Athens was an independent state because their system of government was totally different from our system. And from any system existing in the world today. It was that their city-states, every city was an independent state, and it has its own laws, it has its own form of government, जो कि नहीं मुमकिन होता। इवन इन अमेरिका ये तो नहीं है ना कि सेंटर में डेमोक्रेसी हो और सूबों में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। तो फिर लिहाजा उनका जो सिस्टम था, इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरी एग्जिस्टिंग सिस्टम। एवरी सिटी हैज़ द स्टेटस ऑफ ए स्टेट, एंड एथेंस वॉज जस्ट अ स्टेट, स्पार्टा वॉज जस्ट अ स्टेट, एंड देयर वर मैसेडोनिया, देयर वर सो मैनी ग्रीक कॉलोनीज इन द मिडल ईस्ट ऑल्सो, इन एशिया माइनर. And even in Africa, they went to Egypt and other places in order to form their own governments there. And each government was independent of the central rule. They don't have uniform policies. तो ये तो हो गया आपके एथेंस के बारे में. So philosophy was born in Greece, not in Athens. Athens is just a city-state. Then in 475 BC, this is the date of birth of philosophy, and the place of birth was Greece. और इसमें सबसे पहला जो the first philosopher was Miletus. ये ज़रा मेरा हाथ आज सही काम नहीं कर रहा, इसलिए अगर थोड़ा सा आपको लगे कि इसमें वो खम है, पेचो खम है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट. तो मिलेटस वाज द फर्स्ट फिलोसोफर, एंड ही टोल्ड अस दैट ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ वाटर. वाटर so became the first principle of his philosophy. If everything is made of water, naturally this is the first principle of existence, of being, of life. आपको पता ही है कि the plants wither away if we don't water them. So water is the principle, first basic fundamental principle of life and everything which exists. So Miletus came to be known as first philosopher, but he was also a scientist, because birth of philosophy means the birth of science as well. मेरा ख्याल है आप लोगों में से बहुत कम ये जानते होंगे कि philosophy means एक तो लव ऑफ विजडम इन्होंने कह दिया,
And secondly, if we look at it now from 21st century's point of view or 20th century's point of view, it is also the birth of science. Philosophy is the science, तो नहीं कहना, science in the sense of knowledge, not in the modern sense. In the modern sense, science means only the physical sciences, and also certain other subjects which in their inferiority complex have started calling themselves sciences. Political science, for example, is one of them. It was political philosophy, it was part of philosophy. And other subjects also. I have founded the subject of gender and development studies at LC University, and I know that how we have designed the courses. We have taken all the old subjects, one course from one subject, one course from one subject, two courses from philosophy, and we have created gender and development studies. All the new subjects are created in this way, in this artificial way. ये मैं आपको बता दूं कि नया सब्जेक्ट कोई भी नहीं है एक लिहाज से, और वो अपने आप को साइंस कहते हैं। भाई साइंस क्यों कहते, पहले फिलॉसफी कहा करते थे। नाउ फिलॉसफी नो लॉन्गर एन्जॉयज द हाई इम्पीरियल pedestal of the highest form of knowledge now. So they are not calling themselves philosophy, they are calling themselves sciences. तो यही हाल बाकी सब्जेक्ट्स का। तो वो कहाँ थे? They don't exist. This was the beginning of these subjects which you are studying in the university now. In the university you are studying, एक तो लिटरेचर है ना, वो तो था, लिटरेचर तो किसी न किसी शक्ल में था, at least in the form of poetry, but philosophy did not exist. And then philosophy came into being and people were so much impressed that everything was known as philosophy. PhD तो अब तक कह रहे हैं भाई, क्या चीज़ है PhD? The highest degree in every subject is called PhD, doctorate in philosophy. तो this was the highest imperial status of philosophy. तो इसलिए ये आप ना कहें कि पहले थी, पहले नहीं थी। Actually there were religions. Actually the human thought has progressed very slowly and gradually. We are studying it very quickly because we are in 21st century and we can manage to study these subjects from a different angle. But look at the primitive man. From caves he came into villages, from villages into cities, from cities into mega cities, and similarly his mind also progressed and evolved in the same fashion. So first knowledge was that of religion. Religion जो है ना वो सबसे पहले आया है। Religion was the first human form of thought. है thought की form जी। Can you define religion? जी? Can you define religion? Can I define? religion? हाँ, religion is everywhere different. एक तो ये चीज़ है, आपको पता ही है। और at least the Abrahamic religion जो हैं, जो इब्राहिम को मानते हैं, उनकी तो तीन शक्लें आपको पता है, जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है एंड इस्लाम है। And all of them believe in God. In one God से पहले बहुत से gods में believe करते थे। First form of religion was that they believed in many gods, as Hindus do even now. जी। That is not the original Hindu concept. क्या? That came later. The concept of multiple god deity. The नहीं, original नहीं। Hindu scriptures talk about one god. नहीं, आप तो हिंदुओं के अंदर रह गए हैं। मेरा मतलब ये है कि उनके कई फिरके हैं जी हमारी तरह, तो आप किस फिरके की बात कर रहे हैं? Tell me. स्क्रिप्चर्स जो हैं उनके, उसमें हर चीज़ को, वो पत्थर को भी खुदा मानते थे। देखें उनकी तो ये हालत थी
कि वो हर चीज़ को खुदा मानते थे। तो ये क्रिश्चियन और ये चीज़ें तो प्रॉफिट्स हैं, देवर प्रॉफिट्स, देयर प्रॉफिट्स, नॉट आवर प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स, एंड दे बिलीव्ड इन एवरी जिसको कहते हैं ना नेचुरल पावर हैज़ अ गॉड. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ गॉड ऑफ लाइफ, देयर इज़ अ गॉड ऑफ पता नहीं उसको विष्णु कहते हैं कि शिव कहते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा सिंस यू आर सो वेल वर्स्ड इन हिंदुज़म. तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन देयर इज़ अ गॉड ऑफ लाइफ, देयर इज़ अ गॉड ऑफ डेथ, देयर इज़ अ गॉड ऑफ ईवल, देयर इज़ अ गॉड ऑफ जिसको रेन कहते हैं, रेन, एंड देयर इज़ अ गॉड ऑफ जिसको फर्टिलिटी. Everything was God for them. जैसे कि रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी में हमें मिलते हैं हर तरह. हाँ, माइथोलॉजी है ना. देखें, रिलीजन से मेरी मुराद इब्राहिमी रिलीजन थे. और जो आप कह रहे हैं वो माइथोलॉजी है. वो माइथोलॉजी है. लेकिन मैनी पीपल बिलीव्ड इन माइथोलॉजी एज वी बिलीव इन रिलीजन, दो इट वॉज नॉट रिलीजन इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, बिकॉज रिलीजन इज़ नाउ यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सेंस. लेकिन उस वक्त बहरहाल माइथोलॉजी केम फर्स्ट या रिलीजन केम फर्स्ट. आप इनको कर सकते हैं ब्रैकेट में यूँ करके, यूँ एक लकीर खींच के माइथोलॉजी यहाँ लिख लें. Mythology was their religion, and Hindu mythology also exists, like the Greek mythology, like any other part of the world which has a mythology, and they do not become religion in our sense of the word. In our sense of the word is those who believe in one God. आगे फिर फ़र्क हो जाता है. आगे जो मर्ज़ी आप, कोई 3 उसके फॉर्म्स बना देता है, कोई एक रखते हुए 10 कमांडमेंट्स. आपको पता है द मोसेस गेव 10 कमांडमेंट्स हमारे प्रॉफिट जो हैं. और दूसरा ये भी फ़र्क है कि जो यहूदी हैं उनके खुदा जो हैं उसमें वो बल्कि मुझे कहते थे जब आई वाज अब्रॉड कि भाई आपने हमारे बादशाहों को क्यों पैगंबर बना लिया है. तो मैं बड़ी हैरान होती थी, क्योंकि मैं तो समझती थी ना कि भाई ये सारे जो हैं पैगंबर ही हैं हमारे दीन के मुताबिक. तो वो कहते थे कि ये तो हमारे बादशाह थे, खुदा तो सिर्फ हमारे किसी लीडर से या किसी बादशाह से बात करता था और उसके ज़रिए से हमें पैगाम आते थे. So this was not their original concept. अगर आप ओरिजिनल पे जा रहे हैं ना, तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट हर किसी का फ़र्क है. और आगे अब उसकी जो शक्लें ज़्यादातर पॉपुलर हो गई हैं, दे आर वेरी डिफरेंट. सो इवन जुडाइज़म सेड कि गॉड इज़ वन, नो डाउट, बट इट नेवर स्पोक टू दीज पीपल, डेविड और जोसेफ और जैकब और ये. And there were many sons of Hazrat Ibrahim, and we call them Hazrat. We give them the status of Pagambar, prophet. In reality, they were the kings according to them, according to the Jews. और उसके बाद उनके जो आगे आल औलाद है उसमें से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तो औलादें यही हैं जो आप देख रहे हैं, जिनको इसराइली भी कहते हैं. और जो हज़रत इस्माईल थे उनमें से सिर्फ मोहम्मद ही हैं जो कि हैं. तो हमारे प्रॉफिट जो हैं, ही वाज आल्सो अ सन ऑफ द सेम पर्सन, बट ही वाज द ओनली वन. उनके यहाँ वो कहते हैं वो बादशाहों से खुदा बात करते थे, उनको आपने पैगंबर बना दिया. तो अब मुझे बताएं ओरिजिनल मिस्टर ओरिजिनल की बात छोड़ दें, वो रिसर्च होती रहती है, वो फ़र्क हो जाता है ओरिजिनल जो है. अब उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी यू नो वेरी वेल
कि क्रिश्चियनिटी जो है वो अक्सर क्रिश्चियनिटी के फ़िरके 3 खुदाओं में एक लिहाज से बिलीव करते हैं। दे बिलीव गॉड इज़ वन बट इट हैड अ सन क्राइस्ट एंड द होली घोस्ट एंड हु इज़ द थर्ड पर्सन, हज़रत मरियम तो भी वो पूछते हैं। तो उनके भी कई फ़िरके हैं, इसको ज़हन में रख के चला करें कि मैं तो जनरल बात कर रही हूँ ना, फ़िरके तो हर जगह पे बहुत से हैं। और वो जी आपने कहा था रिलीजन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन फॉर्म। जी क्या कहा था? रिलीजन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन फॉर्म। थॉट मैंने कहा था ना। इसको थोड़ा बता दें। हाँ, इसका ये है कि एक बात तो मैंने आपको बता दी है कि दे ऑल ऑफ देम बिलीव इन वन गॉड, whether that God directly speaks to the king or the leader, or like other like Christianity, there is God but Christ is his son, and Hazrat Maryam was also his daughter ही होना चाहिए फिर तो, लेकिन they don't say that. And Holy Ghost is another form which is Gabriel in reality. Gabriel is the angel who used to bring वही या जिसको इल्हाम हम कहते हैं वो to the Christ। तो इसलिए वो तो किसी हद तक इल्हामियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, आपको पता ही है, हमारे यहाँ तौहीद भी है यानी गॉड इज़ वन, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक और क्या चीज़ें बताएं आप सब मुसलमान हैं जी। रिसालत, रिश्ते। हाँ नहीं हम मतलब फिरके तो आपने पैदा किए हैं हज़रत मोहम्मद ने तो नहीं पैदा किए, उन्होंने तो, हमारा एक प्रॉफिट है who has brought directly the message from God to us। ये है, this is what we think is religion। या अलामा ने भी किसी जगह कहा हुआ है कि ये लफ्ज़ सही नहीं है, रिलीजन जो वेस्ट में इस्तेमाल होता है, इसके बजाय हमारे यहाँ जो डिस्टिंक्शन है ना मज़हब और दीन की वो है। तो इस लिहाज से भी अलामा का फ़र्क और बाकी लोगों का फ़र्क जितने भी हैं, चाहे वो मुसलमान ही हों, फ़र्क बड़ा वाज़े नज़र आता है। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि मैं बाकी फ़िलासफ़र्स को छोड़ती हूँ एंड जी हाँ फ़िलासफ़ी की नहीं की। फ़िलासफ़ी is the science in the meaning of the word, in the sense of knowledge actually. Science in Latin means knowledge. Every piece of knowledge is a science in Latin. लेकिन जो हमारा अब बन गया है वो साइंस, हम सिर्फ फिज़िकल साइंसेस के लिए करते हैं। तो मैं अगर साइंस कहूँ तो आप घबराएं ना कि ये साइंस तो नहीं है, तो ये कह रही हैं कि साइंस है। तो फिलॉसफी इज़ द नॉलेज कह लेते हैं, चले साइंस नहीं कहते। तो इज़ द साइंस विच हेल्प्स अस टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स and our human life. This is a brief definition of philosophy. Philosophy is the science or knowledge, science in the sense of knowledge, which helps us to discover the meaning of this universe and human life. तो इसके बाद तो अब फिलॉसफी की नहीं ना ज़रूरत रही कि बताएं। अच्छा, एंड विदाउट मेकिंग एनी रेफरेंस टू अ सिंगल, एक और ख़ुसूसियत फ़िलासफ़ी की है कि इसमें एक फ़र्स्ट प्रिंसिपल ज़रूर होता है। which is the source of all being
बीइंग का क्या मतलब होता है? टू बी क्या क्या मतलब है? टू एग्जिस्ट, which is the source of all existence, and this is a necessary requirement of philosophy. तो हर फिलोसोफर कोशिश करता है कि वो यूनिवर्स की, ह्यूमन लाइफ की मतलब, उनकी हकीकत मालूम करें और फिर वो कोई ना कोई फर्स्ट प्रिंसिपल मुकर्रर कर देता है उसको बयान करने के लिए। तो अब इसमें सोक्रेटिस का क्या प्रिंसिपल था जी? 5 questions. नहीं, क्वेश्चन से तो वो बात को आगे बढ़ाता था ना। दिस वाज हिज मेथडोलॉजी, नॉट हिज फिलॉसफी। What's the question, sorry? जी, What's the question? क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस? I think Plato discusses the realm of higher forms. Socrates based his entire concept of philosophy on the realm of higher forms. The world is a नहीं नहीं, दैट इज प्लेटोनिक फिलॉसफी, okay. नॉट सोक्रेटिक फिलॉसफी। जी, ज़रा ऊंचा। Socrates has said that the only thing I know is that I do not know. हाँ, एक तो ये था, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। दैट मीन्स द कन्फेशन ऑफ one's ignorance. Philosophy begins with the confession of one's ignorance. लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या थी कि वो मालूम करे कि इस यूनिवर्स और ह्यूमन लाइफ का क्या मतलब है, ये क्यों बनाई है, ये क्यों है। तो उसका जो है ना, इसको हम कहते हैं, अब थोड़ा सा आप शायद घबराएं लेकिन टर्मिनोलॉजी इज़ अ मस्ट। तो स्केप्टिसिज्म, इसको कहते हैं स्केप्टिसिज्म। तशकीक, उर्दू में कहते हैं तशकीक। I know that I don't know anything. And how he came to the conclusion that he doesn't know anything? Because a person went to Delphi's temple and there he asked Apollo, which is the god of knowledge, who is the wisest of all the Greeks? And there he said, the answer came, Socrates. Until then, Socrates was an unknown person, a very poor person who had no profession, न कम्मा न खटू, मतलब बड़ी गरीब था और कोई उसको नहीं जानता था। Nobody knows him. लेकिन ये बंदा उसका पता पूछता पूछता उसके घर पहुंचा और जब वो बाहर निकला तो उसको देख के वो कहने लगा कमाल है, पर ये वाइजेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स है। बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी अगली, he had small eyes, he had big belly, and he didn't have the hair and all these things which we attribute to ugliness. And then when he went away, Socrates started thinking, why Apollo considers me the wisest of all the Greeks? And he came to the conclusion, after a long research, because he couldn't write, he was an illiterate person. इसमें ये भी एक पॉइंट है जो कि अशफाक साहब ने मुझे एक दफ़ा अपने प्ले में बुलाया था। प्ले ही था, मतलब वो ज़ाविया जो पेश करते थे, और उसमें यही था कि ज़रूरी नहीं कि इल्म से आप हकीकत तक पहुँचें, इल्म के बग़ैर भी आप हकीकत तक पहुँच सकते हैं। एंड वन जो एग्ज़ाम्पल है विच आई हैड गिवन was that of Socrates. He had the knowledge and yet he said, I don't know anything. And how he said that? Because he couldn't write, he couldn't read, he doesn't know about philosophy भी कोई चीज़ होती है, या कोई academic subject भी कोई चीज़ होती है। तो वो सबसे पहले एक इसके पास गया, संतराश द स्कल्प्टर,
और उससे पूछा कि भाई तू क्या करता है, एंड ही सेड आई क्रिएट ब्यूटी। और वो बड़ा उससे पूछने लगा, अच्छा व्हाट इज़ ब्यूटी, एंड ही couldn't answer it. Then he went to a statesman and he said, what do you do? He said, I do politics. But when he went on questioning, which was his methodology of course, the statesman could not answer what is politics. And then he went to a judge and asked the same question, and he said, my business is justice. And he said, what is justice? He couldn't answer it. And then finally he came to the conclusion, nobody knows his profession, nobody knows his subjects. I am the only one who know that I don't know. ठीक है? That was the beginning of his philosophy. After that he presented a theory of knowledge which is known as, जो कि अब तक आप पढ़ रहे हैं वैसे एक लिहाज से, अगर आपको नहीं भी पता तो आप पढ़ रहे हैं, and that is the conceptual theory of knowledge. Conceptual, कि knowledge comes through concepts. And what is the concept now? Concept होता क्या है? क्योंकि आपका सारा नॉलेज MBBS हो, ये क्रिमिनोलॉजी हो, IT हो, everything is based on concepts. Understanding of a thought? नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो बाद की बात है, पहले Idea होता है। आइडिया तो होता है डेफिनेटली, अ कॉन्सेप्ट मीन्स एन आइडिया बट इट डजंट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। The essence of something. जी The essence of something. नहीं, वो एसेंस का लफ्ज़ भी बाद में आया है। ही सेड अर्लियर दैट कॉन्सेप्ट गिव्स अस नॉलेज। अच्छा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता, वैसे आप सब कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इनको कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता। कॉन्सेप्ट्स जो है ना जी, आप देखते हैं कि एक मसलन एक कौवा है, वो किस रंग का होता है? स्याह रंग का। देखिए इसमें भी इनको देर लग रही, सोच में पड़ गई किस रंग का होता है। ये स्याह रंग का होता है, जिसमें से अक्सरों ने ये कपड़े भी पहने हुए हैं। बहरहाल एक कौवा आप देखते हैं वो स्याह रंग का है, फिर आप दूसरा कौवा देखते हैं वो भी स्याह रंग का है, तीसरा देखते हैं वो भी स्याह रंग का है, चौथा, पांचवा, छठा। आपकी वालिदनेस एंड क्रोनेस वर यूनाइटेड टुगेदर in the form of a sentence. So concept means uniting different ideas, तो नहीं मैं कहती, लेकिन facts, connecting them together and making them a single principle. आपका जो लॉ है ना केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह का, वो सारा इसी तरह बने हुए हैं। आप देखें ग्रेविटेशनल लॉ, व्हाट इट इज़? It is based on the concept of gravitation. What is gravitation? Gravitation ये है कि आप देखते हैं कि मैंने ये पेन फेंका, ये नीचे की तरफ गया, मैं दूसरा पेन फेंकती हूँ वो नीचे की तरफ जा रहा है। आप घर में चम्मच आपके हाथ से गिरता है, वो नीचे की तरफ गिरता है। अगर आप खुदा न खास्ता मोहब्बत में गिरफ्तार हों और छत पे चढ़े हों और ख़ुदकुशी का इरादा रखते हो तो छलांग लगाएंगे तो किधर जाएंगे? नीचे ही आएंगे। ऊपर नहीं जाना आपने, नीचे आएंगे आप ज़मीन की तरफ। सो इट मीन्स दैट द अर्थ हैज़ सम पावर एंड दैट इज़ ग्रेविटी। और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इन एग्जाम्पल्स को इंसान ने देख देख के बना लिया। ग्रेविटी इज़ नाउ अ कॉन्सेप्ट। कोई आप देना चाहें मिसाल कॉन्सेप्ट? अच्छा मैम, कॉन्सेप्ट में आपने जैसे कहा कि जी ऊंचा बोला करें मुझे। मैम जैसे आपने कहा कि कॉन्सेप्ट में हम फैक्ट्स को वो इकट्ठा करते हैं फिर उनको इसमें ये भी हो सकता है कि हमें उन फैक्ट्स को वेरीफाई भी तो कर रहे होते हैं ना? नहीं, वेरिफिकेशन जो है ना जी, दैट इज़ अ प्रिंसिपल
and it was presented by Bertrand Russell in 20th century. तो हम तो बहुत पहले की बातें कर रहे हैं। सोक्रेटिस कहाँ था और रसल कहाँ पे है, आप खुद ही देख लें। Verification is a principle of logic, there is no doubt about it, but it is something which has been mentioned by Russell. Russell से पहले तो किसी ने कहा नहीं। He was a logical positivist and he believed in the principle of verification, कि भाई वेरीफाई करो और फिर उसके बाद पेश करो लोगों को। तो मतलब आप तो बहुत आगे चले गए ना, हम तो बहुत पीछे हैं। इंसान अभी बहुत, मैं मजमूई तौर पे कह रही हूँ, इंसानियत बहुत पीछे है अभी। अभी तो आप कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं ना। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ सोक्रेटिस। जी जी। ये तो आपने बताया जो चीजें हम देखते हैं, जो चीजें नहीं देखते हैं, उनके कॉन्सेप्ट नहीं, उनके तो आप फिर वो उसमें चले जाएंगे ना, या माइथोलॉजी में चले जाएंगे या आप। नहीं, वो ये मेटाफिजिक्स भी नहीं है। मेटाफिजिक्स तक अभी हम पहुँचे ही नहीं। अभी तो हम नॉलेज की बातें कर रहे हैं। नॉलेज इंसान किस तरह इकट्ठा करता है, तो वो हम इस तरह इकट्ठा करते हैं कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए से। इसके जो सोक्रेटिस है, स्केप्टिसिज्म, आई नो दैट आई डोंट नो, साफ होना चाहिए हमारा जहन कि मुझे कुछ नहीं पता। और दूसरा ये कि कॉन्सेप्ट, फिर उसने कहा कि सारा इल्म कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए से हासिल होता है। जी, अभी हमने क्रो की एग्जांपल ली है, तो उससे पहले क्या कंसेप्ट से पहले डिडक्टिव अप्रोच आती है? नहीं, आप तो देखें ना, आगे चले जाते हैं। देखें, आप वो बातें करते हैं जो बहुत आगे जाके फ़लसफियों ने की हैं। हम तो अभी बहुत पीछे हैं। उसका प्रोसेस भी तो सेम है, जैसे प्रोसेस तो सेम है, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं ना कि हमें सारा इल्म कॉन्सेप्ट से हासिल होता है। ये तो बहुत बाद की बात है। देखें, फिर बीच में प्लेटो आ जाता है, फिर एरिस्टोटल आ जाता है, तो फिर वो जो बातें कर रहे हैं आप, वो सोक्रेटिस तो अभी और अनपढ़ आदमी था। इस पे देखें, अनपढ़ होने के बावजूद वो कितना सही रास्ते पे चला है कि आज तक आपको सारा इल्म जो हासिल हो रहा है वो कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए से हासिल हो रहा है। आप ये देखें, अनलेस यू हैव अ कॉन्सेप्ट you can't have knowledge. Knowledge is equal to concepts. अच्छा जी, हाँ बिल्कुल अनपढ़ था, यानी टोटली। और यंग मैन वर मैड आफ्टर हिम, ये भी मैं आपको बता दूँ। ही हैड सम charismatic power in his ugly face and होलिया जो आपने को मैंने बताया। एंड यंग मैन ऑफ एथेंस वर मैड अबाउट हिम। उनके घर वाले कहते थे किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वक्त ज़ाया करते हो, लेकिन वो कहते थे नहीं, उस शख्स की बड़ी अक्लमंदी की बातें होती हैं, तो वो जाके सुनते थे उससे। और बाद में भी देखें, हिज स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ही अगर वो मज़हब के ज़माने में होता तो हम पैगंबर ही कहते उसको, क्योंकि बाद में एक जंग हुई थी एथेंस की एक और सिटी स्टेट के साथ, और उसमें एथेंस हार गया था। तो सोक्रेटिस ने कहा था कि ये जर्नैलों की वजह से हारा है, और उसने हर तरफ कहना शुरू कर दिया था। तो वो बड़े परेशान हो गई, हुकूमत भी और जर्नैल भी, कि ये क्या कहता फिर रहा है। उन्होंने तो अपने अवाम को कहा था ना कि हमारी वजह से नहीं हुआ, फ़लाँ फ़लाँ वजूहात थी उनकी वजह से हुआ। एंड देन फाइनली ही वॉज ट्राइड फॉर करप्टिंग द यंग मैन ऑफ एथेंस। फाइनली he was tried in the court to corrupt the young men of Athens. और उस करप्शन में ये सारी बातें उन्होंने की कि जी इसने तो कोई नई थ्योरी दे दी है और अपने पास से कहता है, और फिर जंग की, क्योंकि सोक्रेटिस डिडंट हैव अ लॉयर, उसने लॉयर भी नहीं किया था। वो कहता था लॉयर का क्या, वो उधर से भी बोल देते हैं, वो इधर से भी बोल देते हैं। लॉयर्स तो यही है ना। अब आप में से कोई लॉ तो नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं।
मैंने कहा शायद आप कर रहे हैं तो कोई पता नहीं, आप नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन हकीकत तो यही है ना। तो उसने कहा था मुझे नहीं किसी लॉयर की ज़रूरत, तो उसने अपना मुकदमा खुद लड़ा था। एंड देन ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। ही हैड टू ड्रिंक अ कप ऑफ पॉइजन। और उसको बचाने के लिए प्लेटो, जो कि एक बड़ी अमीर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का लड़का था उस वक्त तो, और उसने एक जहाज़ को पैसे दे के तैयार रखा हुआ था नीचे एथेंस की बंदरगाह पे, जो कि मैंने तो देखी भी है। मैं तो ज़ियारत करने गई थी सुकरात की, आपको शायद नहीं पता। तो वो वहाँ पे तैयार रखा हुआ था कि जब फैसला आएगा और इसके हक़ में ना हुआ तो इसको हम यहाँ से फ़रार करवा लेंगे। और जेलर को पैसे दे दिए थे। पैसे उस वक़्त भी लेते थे लोग, ये नहीं कि अब ले गए। और फिर वो जेलर जो था वो उनके साथ मिल गया था। और फिर जब गया ये प्लेटो, और ज़ेनोफनीज़ एक और शागिर्द था, वो भी गया और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें, जहाज़ तैयार है, ये पीने की ज़रूरत ही नहीं, जहर का प्याला। और वो फिर सोक्रेटिस ने कहा कि नो, इफ़ आई विल लीव नाउ आई विल बी प्रूवन गिल्टी एंड आई एम नॉट गिल्टी। एंड ही रिफ्यूज़ टू गो विद प्लेटो। ही रिफ्यूज़ टू गो, जिसको कहते हैं ना कि एक झूठा इंसान वो भागता है, उसने कहा। और फिर उसने चंद बातें की इनसे और कहा कि द टाइम इज़ फॉर ड्रिंकिंग पॉइजन, ब्रिंग मी द कप ऑफ पॉइजन, एंड ही ड्रैंक इट। तो प्लेटो खाली हाथ वापस आया। सो दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट लाइक अ प्रॉफिट, जो कि फिलॉसफी में। जी उस दौर में जहर का प्याला देके सजा दी जी, उस दिन उस वक्त ये था कि जिसको मौत की सज़ा होती थी ना, वो जहर का प्याला पीता था और उससे उसकी डेथ हो जाती थी। फिर जाहिर है, और फिर बाद में तो बड़े और तरीके निकल आए। गिलोटीन निकल आई। गिलोटीन आपको पता यूँ करके सर काट देती है। तलवारें निकल आई, बतेरा कुछ हो गया जो कि मौत की सज़ा पाने वालों को देता है। So this is the interesting story of Socrates, and this is his philosophy. And after that comes Plato. ये मैंने इनको बताया जी, आपको तो शायद पता भी होगा कि वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था और स्केप्टिसिज्म उसका फर्स्ट प्रिंसिपल था, तशकीक। और कॉन्सेप्ट्स जो हैं जिसको उर्दू में ताक़ुल कहते हैं, एक उसने स्केप्टिसिज्म से उसने बात शुरू की थी और फिर वो कॉन्सेप्ट तक आ गया था जो अब भी आप लोग पढ़ रहे हैं। बस ये मैंने इनको बताया है। एंड आफ्टर 12 years फॉर प्लेटो, अब यहाँ पे भी आप देखें ना, मोहब्बत वो नहीं है जो कि आम लोगों के ज़हन में होती है। प्लेटो वॉज इन लव विद सोक्रेटिस, नॉट इन द फिज़िकल सेंस। He physically was not attractive. He was very, very ugly, but in the mental sense. And for 12 years, he traveled to various countries, and nobody knows where he went. Maybe he came to India, he went to Egypt, he went anywhere, nobody knows. He had a ship of his own because he was a very rich boy. And after 12 years when he came back, he founded the Academy of Plato, जो अब भी है। अगर आप एथेंस जाएं तो आपको एक मेन सड़क के ऊपर उसकी एकेडमी दिखाई देती है। तो then he founded the Academy of Plato, और उसके माथे पे उसने लिख के लगाया था, जो पता नहीं आप में से कितने लोग वहाँ दाखिला ले सकते थे कि पता नहीं ले सकते थे, मेरा ख्याल है नहीं ले सकते होंगे, कि जिसको मैथ्स नहीं आता वो मेरी एकेडमी में आने की कोशिश ना करे।
उसको मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। तो ये उसकी प्लेटो की। अब प्लेटो जो है वो क्या फ़िलॉसफी पेश करता है। एक तो उसके प्लेटोनिक डायलॉग बड़े मशहूर हैं, जिनका ये कह रहे थे कि वो एक्टिंग करके तो पेश करते हैं। हम भी एक्टिंग कर लेंगे किसी दिन, आप कहते हैं तो। आप में से जो अच्छा बोलने वाले हैं, जो रवानी से बोल सकते हैं, जिनके बुरा ना लगे लोगों को सुन के, तो उनसे हम एक डायलॉग जो है वो यहाँ पे करवा देंगे और आपके लिए वो प्ले होगा, लेकिन वो होगा प्लेटोनिक डायलॉग। एक तो उसने प्लेटोनिक डायलॉग लिखी। अच्छा, अब प्लेटो जो है, ही इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन एंड आफ्टर 12 years ही बिकेम मैच्योर। एंड जाहिर है उस वक़्त अगर वो 24-25 का था तो 18-12 साल में तो वो बड़ा मैच्योर बंदा बन गया था। तो इसीलिए उसने एकेडमी भी खोली और उस में जो फ़िलॉसफी उसकी अपनी थी वो उसने ये पेश की। वो फ़िलॉसफी जो है वो एक तो इस एपिस्टेमोलॉजी पे, देखिए मैं आप मोटे मोटे लफ्ज़ बोल रही हूँ आपके लिए, एपिस्टेमोलॉजी, इस एपिस्टेमोलॉजी पे डिपेंड करती थी। इसको उर्दू में लिखें तो बहुत आसान हो जाएगा, नज़रिया इल्म, ठीक है। He based his own philosophy and its epistemology on the skeptical philosophy of Socrates, इस पे बेस की। उसके बाद उसने ontology onto means being, और उसने कहा कि सारी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी बीइंग है, वो किस पे उनकी बेस क्या है, वो उसका जवाब था आइडियाज़। ठीक है, तसव्वुरात उर्दू में। तसव्वुरात। अब ये तसव्वुरात कहाँ हैं? क्या ये हमारे जहन में हैं या हमसे बाहर हैं? ये कहाँ है? तो प्लेटो का ये जवाब था कि आइडियाज़ आर इन रियलिटी आइडियल्स। इमसाल, इमसाल। हाँ जी, सबको करेंगे, सबको करेंगे, आप क्यों घबराते हैं? And where do they exist? In another world. There are two worlds according to Plato. One is this world in which we live, and the other is the world of ideals in which they live. And everything which exists in this world has an ideal copy in the world of ideas. तसव्वुरात की दुनिया में उसका असल मौजूद है, हम सब उसकी नकल हैं। We are just copies. एक कॉपी से दूसरी कॉपी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी निकलती जा रही। And as they issue from the original ideal, they are not perfect. ये तो हमने देखा ही है। हम इंसान तो हम कहते भी हैं ना कि इंसान परफेक्ट नहीं होता। आम तौर पे हम बातों में यही कहते हैं कि इंसान परफेक्ट नहीं होता।
और उसकी वजह क्या है? प्लेटो के नज़दीक उसकी वजह है कि इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ द आइडियल ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट, मैन एग्जिस्ट, मैन। आइडियल इंसान इस दुनिया में नहीं पाया जाता, वो कहीं पाया जाता है तो उस दूसरी दुनिया में पाया जाता है। और यहाँ आप एक मुशाबहत देखें इस्लाम की और प्लेटो की, क्या है वो मुशाबहत, दैट सिमिलैरिटी। दुनिया और जी जी दुनिया और आखिरत का कॉन्सेप्ट थोड़ा। हाँ, किसी हद तक आखिरत तो मतलब हम भी तो कहते हैं ना, दो दुनियाएं हैं। एक ये है जिसमें हम जो कुछ करेंगे उसका नतीजा हमें अगली ज़िंदगी में मिलेगा, तो हम भी यही कहते हैं। वैसे तो मुसलमान लगता है यहाँ पे तो कम अज़ कम प्लेटो एट लीस्ट इन वन पॉइंट ही सीम्स टू बी अ मुस्लिम, कि भाई देयर आर टू वर्ल्ड्स, कि भाई एक ये दुनिया है और एक आने वाली दुनिया है जिसमें हमसे बेहतर हैं, बहरहाल बहुत बेहतर हैं हालात। तो ये दो दुनियाओं का तसव्वुर हमने भी रखा हुआ है वैसे तो। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो उस तरह से नहीं ना लिया जा सकता। नहीं, कॉन्सेप्ट तो फ़र्क है जी, फ़र्क है, बिकॉज ही डज नॉट टॉक ऑफ गॉड, ही डज नॉट। अकॉर्डिंग टू उसके कि वो दुनिया रियल दुनिया, ये तो ये नहीं, ये दुनिया जो है इसमें कॉपीज़ एग्जिस्ट करती हैं। आप सब कॉपीज़ हैं आइडियल इंसान की। आप इमेजिन कर लें आइडियल तो फिर बड़ा खूबसूरत होगा यही मतलब निकलता है। लेकिन ये जो वाटर वाला कॉन्सेप्ट है इसका, लेटेस्ट का जो आप कह रहे हैं, ये भी तो कुरान के मुताबिक ही है कि हाँ, सारी चीज़ें ये भी कुरान के मुताबिक है। हाँ जी, पानी से ही ओरिजिन है सारी। हाँ जी, ये भी अगर देखा जाए तो यहाँ ये जो आयोनिक पीरियड जिसको कहते हैं, उसके सारे फ़लसफ़ी जो हैं उनमें कोई ना कोई देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन दैम, जो कि अब इस सदी से पिछली सदी में जाके प्रूव हुई है, पहले नहीं हुई थी। पहले तो लोग बस कहते थे ठीक है जी, ये कह रहा था तो कह रहा था। लेकिन ये कि इंसान का जिस्म पानी का बना हुआ है ना जी, कितने % है पानी इंसान के जिस्म? जी 70% पानी है आपके जिस्म में, मेरे जिस्म में भी, आपके जिस्म में भी। तो इसलिए वो भी आप ठीक कहते हैं, वो भी है। तो मजमूई तौर पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन एवरी थिंकर देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, वी मस्ट डिस्कवर इट, एंड देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ falsehood that we should criticize. That is the principle of your education. Education का मतलब ही ये होता है। जैसे अल्लामा के बारे में बाज़ लोग कहते हैं ना जी कि उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीब तरीके से शुरू हुई। देखें, पहले वो हिंदुस्तान के हामी थे, अखट हिंदुस्तान के, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के हामी हो गए। तो ये क्या मतलब है? ये तो यू टर्न है, ये तो ये है। ये नहीं है यू टर्न, ये एवोल्यूशन ऑफ थॉट है। और एवोल्यूशन में होता ही ये है कि आप इस वक्त जो हैं वो आइंदा 15 साल बाद आप नहीं होंगे। यू विल बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। तो ये अच्छा, फिर दूसरी तरफ कायदे आज़म का भी यू टर्न का जिक्र आता है। मसलन कायदे आज़म पहले अकट के हामी थे, यूनाइटेड इंडिया के हामी थे, देन ही फाइनली चेंज टू मुस्लिम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ भी यू टर्न है, वहाँ भी एवोल्यूशन ऑफ थॉट है। तो हर थिंकर जो है ना उसकी थॉट इवॉल्व करती है, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है। ये नहीं हम कह सकते वो छलांग लगा के तो एकदम ये बन गया, वो शुरू से रेवोल्यूशनरी था इसलिए वो बस रेवोल्यूशनरी था। ये नहीं होता, हम पहले रेवोल्यूशनरी नहीं थे फिर हम बन जाते हैं। गज़ा में जो लोग रहते थे वो पहले रेवोल्यूशनरी नहीं भी थे तो अब बन गए होंगे, अब जो हालात। तो इसलिए ये एवोल्यूशन ऑफ थॉट अकर्स इन एवरी थिंकर। तो कितना हो गया जी? वक्त घंटा हो गया जी नहीं, 1:30 बजे तक। अच्छा।
अच्छा 15 मिनट और हैं। अच्छा जी, तो ये प्लेटो का मैं जिक्र कर रही थी कि ही बिलीव्ड इन Socratic theory of knowledge, and he also believes in the ideals world. और अब उसके बाद हम उसकी एथिक्स जो है वो उसका जिक्र करते हैं। एथिक्स को क्या कहते हैं उर्दू में पता है? अखलाकियात। अखलाकियात। Now what are the principles of Platonic ethics? Very simple. A person who has this sort of philosophy, this sort of epistemology, this sort of ontology, he will tell you that any person who works for reaching the ultimate reality is on the right path. And what is the ultimate reality? Ideas. मिसाली इंसान अगर हम बनने की कोशिश करते हैं तो फिर हम सही रास्ते पे हैं। ये उसकी एथिक्स है, सिंपल एज दैट, क्योंकि उसकी बाकी फिलॉसफी के तहत ही है। अच्छा, फिर उसकी पॉलिटिक्स आ जाती है। सियासियात। सियासियात जो है वो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि हमारे यहाँ क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी में। हाँ जी, आप बताएं, आपने तो इंटरनेशनल रिलेशंस में किया हुआ है। 3 क्लासेस में डिफाइन करता है ना, एक वो उसमें करता है जो डिजायर कॉमन पीपल है, एक जो कि फिलोसफर्स हैं उनको किंग बनाता है कि ये आगे हुकूमत संभालेंगे। एक और कैटेगरी है सोल्जर्स की, 3 कैटेगरीज में वो डिफाइन करता है। एक और कैटेगरी भी है, एक और एलीट क्लास। नहीं, एलीट नहीं भाई, उसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एलीट तो फलसफी है ना उसके नज़दीक, बाकी तो कोई एलीट है ही नहीं। एक और क्लास भी है। ऊंचा बोला करें, आप मन करते हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। जी नहीं नहीं नहीं, क्लर्जी उसके यहाँ है ही नहीं। ही इज़ नॉट अ रिलीजियस पर्सन। बताएं कौन सी और क्लास एक एग्जिस्ट करती है? एक आपने कह दिया फलसफी या किंग्स, दे शुड रूल द कंट्री, ओनली दोज हु आर केपेबल ऑफ थिंकिंग। दूसरी आपने कह दिया, क्या कहा था? सोल्जर्स हु शुड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनिमी। अगेंस्ट पब्लिक। जी, अगेंस्ट पब्लिक राइट्स। नहीं, राइट्स कहाँ थे जी? बातें ये देखें, ये छोड़ें, ये दोगलापन अमेरिका का जो उसका जिक्र न किया करें। और अभी राइट्स का वक्त भी नहीं आया। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द आइडियल स्टेट, because he in everything he talks about the ideal. जी जी, क्या? जस्टिस, माइंड योर ओन बिजनेस। नहीं, जस्टिस नहीं, जो मैं तो जज के पहले ही बता दिया, उसको पता ही नहीं था जस्टिस होता क्या। आपको मैंने पहले नहीं बताया कि उसको पता ही नहीं था कि जस्टिस होता क्या, तो उसने क्या, वो क्लास नहीं है। बिजनेसमैन। जी, बिजनेसमैन, ये मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, हाँ कह सकते हैं आप। हाँ, कॉमन मैन। नहीं, कॉमन मैन नहीं कहें, कि वो क्लासेस में तकसीम कर रहा है। एक सोसाइटी है जिसको वो क्लासेस के अंदर नहीं बंद कर। बिजनेसमैन का तो मेरे ख्याल प्लेटो ने कहा था होना ही नहीं चाहिए कभी।
हुकूमत उसको देनी नहीं चाहिए, उसने करनी करप्शन है, उसने तो चार्ज बाय मनी। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में नहीं जी, कम्युनिज्म कहाँ से आ गया, बड़ा पुराना ज़माना है। हम तो बड़े कदीम ज़माने में पहुँचे हुए हैं इस वक्त, और वो अल्लामा की वजह से पहुँचे हुए हैं। वो क्यों पहुँचे हुए हैं ये बाद में मैं आपको बताऊँगी। अच्छा जी, तो वो क्या है भाई, आपको अब सलमान teacher, philosophers are the teachers also. देखें, उसने कहा था कि एक सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए विच शुड बी बेस्ड ऑन मेरिटोलॉजी और मेरिट की बिना पे। उसमें जो हाईएस्ट नंबरों वाले हैं ना, वो तो बन जाएंगे फिलोसोफर्स एंड दे विल रूल द कंट्री, और उनके हर साल इम्तिहान भी होंगे। ये नहीं कि वैसे ही छुट्टी करके बैठे हों कि हम बादशाह बन गए हैं तो चलो। और उसके बाद फिर उसने कहा था सोल्जर्स, जो नंबर 2 रह जाएंगे वो सोल्जर्स बन जाएंगे, वो जनरल्स बन जाएंगे। नंबर 3 क्या चीज़ थी जो रह गई अब? नहीं, अवाम का लफ्ज़ तो मौजूद है जी, लेबर क्लास, राइट। फार्मर्स आर ऑल्सो laborers. And he believed that it is also a separate class, and also the businessman उसमें include कर लें आप। लेकिन उसके बाद एक और क्लास थी जो कि स्लेव्स की थी। स्लेव्स, यूनानी अपने आप को बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता समझते थे, तो जिस जगह को वो कॉन्कर करते थे ना, वहाँ के लोगों को वो स्लेव बना लेते थे। So a slave did not have any right to education, any right to rule, any right to do his business or till his land, and he is not a tiller of the land, nothing. Slave तो slave है बस, उससे जो मर्जी आप काम करवा लें, उसको कहीं ये सामान उधर उठा के रख दो, वो रख देगा, उधर से उधर रख दो। भाई इस तरह के काम जो हम आजकल कहना नहीं चाहिए नौकरों से लेते हैं, वो स्लेव्स का तो कॉन्सेप्ट था उनके यहाँ। उनके कोई राइट्स नहीं थे, उनको मार भी दिया जाता था तो नहीं, उनका तो कोई था ही नहीं जी, वो मतलब सार पे जी भी नहीं समझते थे ना उस जमाने में, तो वो स्लेव्स को तो ह्यूमन भी नहीं कंसीडर किया। नहीं, they were dehumanized, उनको एक थिंग के तौर पे वो करते थे। राइट, वो मतलब एक और क्लास है उसकी आइडियल स्टेट में। तो उसके बाद वो कहता है कि अच्छा, वो क्यों कहता है कि द रूलर्स विल बी द किंग्स, विल बी द फिलोसोफर्स, देन दोज हु आर केपेबल ऑफ फाइटिंग वेल, दे विल बी सोल्जर्स, एंड द थर्ड विल बी फार्मर्स एंड बिजनेसमैन, एंड फोर्थ विल बी स्लेव्स। ये इसकी पॉलिटिक्स है। और अब बजाय मेरा ख्याल है कि हम अरिस्टोटल का थोड़ा फिर कर लेते हैं, अभी वक्त है 10 मिनट। तो अरिस्टोटल कम्स, हु वाज Aristotle was a student of Plato, and he became the tutor of Alexander the Great. बड़ा मुश्किल स्टूडेंट था उसका। वो तो उसने शुक्र किया था कि दुनिया फतह करने निकला है, मुझे छुट्टी दे दी है। वो इतना कहता था, बड़ा नालायक है। तो बहरहाल अब फातेह आलम तो नालायक ही होते हैं ना, वो तो सोड के होते हैं लोग। Arastu. He was a student of Plato at his academy. That means his mathematics was very good. That's why he was allowed to enter the academy. And there he studied under his tutorship, and later on he became the tutor of Alexander the Great. And very soon Alexander became the king, because his father Philip died, and at the age of 17 he became the king. And he had this idea given by his mother that you are not a human being, you are a god with small g. You are a god. ये distinctions इन में रखें।
जब स्मॉल जी से लिखते हैं तो फिर इसका मतलब देवता, कि तुम तो देवता हो। तो ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर मी, एंड यू नो वेरी वेल ही केम टू इंडिया ऑल्सो, एंड हियर एक मच्छर ने उसको काटा, बस काम तमाम हो गया, हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो जो जंग आप जिसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं वो तो बस यूं ही नाम है ना, वो तो हमारे जो काम है, जो आया जी आया नु। And that's why Alexander was so happy. वो दिल्ली गई हो गया, मलेरिया का हुआ था वैसे वो। अच्छा जी, तो वो मतलब हमें कोई जंग शंग नहीं करनी पड़ी, हमें वैसे ही सल्तनत मिल गई थी, क्योंकि अलेक्जेंडर वाज सो हैप्पी दैट कह रहा है कि जी आया नहीं तो किसी ने भी नहीं कहा। तो ईरान को पीछे तो उसने जला के राख कर दिया था, इसीलिए कि वो लड़े थे। तो उसने फिर उसको कहा कि जा तुझे बख्श दी पंजाब की हुकूमत। तो ये एक हमारे जो हीरोज़ हैं ना वो हैं इसी किस्म के। असल हीरो तो कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। तो बहरहाल जो जैसे भी बात चलती है, तो अब अलेक्जेंडर जब जाता है तो अरस्तु को पेंशन दे के जाता है, और उसकी पेंशन स्पेन की स्टेट होती है। और वहाँ पे Aristotle became very happy that he has retired, and he was then at the age of 38, and he had been full of ideas, and he wanted to practice those ideas in his labs. तो he created the first labs of the world, ये भी याद रखें आप, the first labs of the world, जिसमें botanical garden भी थे, जिसमें कोई जानवर भी उसने छोटे मोटे पाले हुए थे, और ज़राअत की ज़मीन भी थी, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें थीं, और एक महल भी था, वो तो होना ही था, स्पेन की रियासत उसे मिल गई थी। एंड देयर ही स्पेंट हिज होल टाइम इन एक्सपेरिमेंटिंग एंड इन थिंकिंग। अब वो दिन को एक्सपेरिमेंट करता था और रात को वो जाग के तो सोचता था उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी, और दूसरा ये जो फ़िलॉसफी है उसके बारे में भी। अच्छा जी, तो उसने एक आला ईजाद किया था अपने आप को जगाने के लिए। आप देखें, आप अपने आप में और उस बंदे में फ़र्क देखें कि सिंस ही वॉज क्रिएटिव, सिंस ही वॉज एन इन्वेंटर, ही इन्वेंटेड अ स्मॉल मशीन which used to prick him whenever he used to go to sleep. तो वो उसके ज़रिए से अपने आप को जगाता था और फिर सोचता था। आप तो अगर जागेंगे भी नहीं सोच सकेंगे, दिमाग भारी होता है, इंसान का बोझल होता है, हमें तो पता ही नहीं चलता। मुझे भी नहीं लगता, वैसे मैं आपका नहीं कह रही, अब मुझे नहीं लगता वैसे इतना पता, वैसे पहले लगा करता था। अब जो है आई एम एट अ डिफरेंट स्टेज। तो बहरहाल हम तो सोचने के काबिल नहीं होते, तो वो जगाता था अपने आप को। एंड देन ही इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ बॉटनी, ज़ूलॉजी, जितने साइंसेस आपने पढ़े हैं ना एफएससी में, उनकी बुनियाद इसने रखी है, बॉटनी। He also in the favor of scientific evolution of scientific inquiries. नहीं, वो साइंटिफिक तो नहीं कहता था उस वक्त, वो हाँ लॉजिक में। असल में उसका जो फिलॉसफी में दो कंट्रीब्यूशंस हैं, एक क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियाज़ को वो मानता था, बट ही हैज़ क्रिटिसाइज्ड हिज टीचर प्लेटो। तो आप लोग तो अभी उस स्टेज पे नहीं हैं, ये तो बहुत बाद की बात है कि वो क्रिटिसाइज करता था। एंड हिज क्रिटिसिज्म वाज दैट आइडियाज डू एग्जिस्ट, बट दे एग्जिस्ट विद इन द मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, द आइडियल मैन एग्जिस्ट, द आइडियल, but it exists in everybody, a small piece कह लें exist करते हैं हम में, तो
यही कह सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही परफेक्ट हैं जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये लिहाजा he believed in ideas, but he believed that they exist within the material objects. एक आइडियल कुर्सी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में भी होगी, लेकिन इस कुर्सी में भी कुछ तो है, कुछ तो है। तो वो कुछ तो है जो है वो अरस्तू ने उसको पॉइंट आउट किया था अपने टीचर के फिलॉसफी को क्रिटिसाइज करते हुए। फिर उसकी जो पॉलिटिक्स है वो भी फ़र्क थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन होना। नहीं, इतनी नहीं आगे की बातें वो करता था जितना आप लोग बना देते हैं ना, आप अपने मुताबिक सोच रहे हैं ना। तो पॉलिटिक्स में उसका ये कंट्रीब्यूशन है कि वो कहता था कि ये जो फिलोसफर्स हैं ये तो हैं, दे आर किंग्स, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फ़र्ज़ करें कि कोई जर्नैल भी अगर लायक है तो उसको फ़िलासफ़र की जगह मिलनी चाहिए। अब उसने जर्नैलों को कंसेशन दी, और क्यों दी अब बताएं। बाकी बातें उसने मान ली अपने उस्ताद की, एक जगह पे आके वो रुक गया। क्योंकि उन्होंने जंग भी लड़नी है। नहीं, जंग तो वो वैसे भी लड़ते हैं ना जी, इट इज़ देयर ड्यूटी। क्या करना होता है? नहीं, वो कहता था कि ये जो इन्होंने कहा था ना, मैं भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली वी शुड मेक रूम फॉर द जर्नल्स। एक ख़ास कोटा शुरू से जर्नलों का होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो फिर अपनी सोच के ज़रिए से हासिल कर लेंगे। ये वजह थी कि अगर हम उनको ये राइट नहीं देंगे कि दे कैन ऑल्सो बिकम इन 2% और 3% इन द रूलिंग पार्टी, which is of course consists of philosophers, then they will grab it, और फिर वो सारी ग्रैब कर लेंगे। तो इसलिए पहले से ही उनको बिठा दें उसके अंदर, ताकि वो शरारत कर ही ना सके। तो ये इन नट शेल मैंने मोटे मोटे बता दिए आपको, ताकि आगे चलने में सहूलत हो, क्योंकि फिर अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इतने बड़े बड़े ये लोग हैं। देखें, अब तक आप पढ़ रहे हैं उनको, पॉलिटिक्स में भी, एथिक्स में भी, एपिस्टेमोलॉजी में भी, हर जगह तो अब भी पढ़ रहे हैं। ये FSc इन्होंने की, इन्होंने भी सारे ये बॉटनी, ज़ूलॉजी इसी ने रखी थी बुनियाद। तो ये क्यों अल्लामा इनके ख़िलाफ़ हैं, दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।